and welcome to each and every one of you to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, obviously tries my best to make accounting concepts and concepts related to finance a little bit more simpler for you. Okay, before I get started with the target for the day, which is a problem based on accounting for not-for-profit organization, specifically for the CBSE 12th standard level. A quick reminder, you can always connect with us, which is very important nowadays. Connect karna, हाँ, it's a different thing. If physically social distancing जरूर रखना है, but yes, digitally connect definitely करना है. You can do that to us through our Facebook page, our Instagram ID, as well as our Twitter handle. Above there is a Telegram channel which is so important that you join. Reason being, there is a lot of communication, okay, official communication, जो वो Telegram channel के माध्यम से, मीडियम से हम आप तक पहुंचाएंगे. So the Telegram channel is used to give you any instructions that I may want to give you that I could not give you in the video format, about the format that is to be drawn by you in your notebooks. Okay, if there is some change in the lecture schedule, for that also the Telegram channel is used. If there is any plus minus, okay, in the questions, वो information के लिए भी Telegram channel above is used. The PDF, that is very important, because whatever is being done right now, you would want a solution readily available with you also for future reference. For complete explanation, the video lecture is always available. The PDF of the question and answer in the same manner that I have solved here behind me on this digital board can also be available on the Telegram channel whenever the entire chapter of whatever level of chapter that I am explaining comes to an end. If you have missed out the previous lecture, there is an I button being given above. Click, go there, watch it, then come here. And if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are being explained, the purchase link of that is being provided in the description below. So, किस बात की देरी है? शुरू करते हैं. Here goes. We have been doing accounting for not-for-profit organization, and the one thing that I will tell you about today's question is what? Don't worry, गलती से ये फोटो नहीं आया है. हाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ, can you describe this photo? Many of you may say, I hope so, कि सर बड़ा cute looking बच्चा है. हाँ, so the same गुण, quality, cute looking आज के हमारे question में है. So let me take you from here to the cute looking question which I am going to be solving today. इधर है. Obviously the reference of that question number is given right above. You know the textbook जहाँ से ये explain किया जा रहा है. कहा है? Prepare income and expenditure account and balance sheet. That we always do, but कौन सा balance sheet? Closing balance sheet. Normally the opening balance sheet, normally which is prepared, वो marks आपको देता नहीं है. Okay, it doesn't carry any weightage, but it is connected to the procedure of we solving the entire problem. You have to prepare income and expenditure, you have to prepare the closing balance sheet. Year end पढ़ लो, क्या कहा है ऊपर? Of culture club. Well, that is the organization or the institution. कहा है receipt and payment account for the year ending 31st March 31st 2016. So the current year has to be 15-16. So very quickly before I go ahead, clarification कि ये current year है 15-16. थोड़ा पीछे आप जाओगे तो आपको last year नज़र आएगा 14-15, and अगर मैं थोड़ा यहाँ से खिसक जाऊँ तो 16-17 is the next year. So keep this ready. ये पेज पे आ ही गया हूँ तो इतना भी याद दिला देता हूँ कि above I have written one formula of PTNL for salaries. If you are someone who
हैज़ डायरेक्टली आपका पूरा जो प्लेन का लैंडिंग है ये लेक्चर में हुआ है, एंड यू आर लाइक ये सर ऊपर क्या लिख के रख दिए हैं, यहाँ पे RTNL लिखा है फॉर सब्सक्रिप्शन एंड अगेन RTNL लिखा है फॉर लॉकर रेंट, और सम ऑफ यू आर लाइक ये RTNL है क्या, देन आप थोड़े आगे के एपिसोड में आ चुके हो. माय रिक्वेस्ट कि देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन द चैनल. ओके, व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट स्टार्ट्स विथ लेक्चर 1. यू स्टार्ट विथ लेक्चर 1. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब ले लो, नॉवेल ले लो, ओके, सस्पेंस थ्रिलर ले लो एंड यू गो यार मर्डर किसने किया है, चल लास्ट के पेज पे, सेकेंड लास्ट के पेज, लास्ट चैप्टर में जाके पढ़ लेता हूँ, पता तो चल जाएगा, बट देन यू विल नेवर नो द उद्देश्य ऑफ दैट मर्डर. मतलब मर्डर किया क्यों उसने, इतना भला आदमी था. हाँ, तो पूरी स्टोरी जाननी है तो पूरी स्टोरी स्टार्ट से ही आपको समझ में आएगी. तो ऑलवेज वॉच एनी चैप्टर इन द प्लेलिस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, सो ये सिचुएशन जो मेरे पीछे है आपको समझ में आ चुका है. यू हैव टू बी प्रिपेयरिंग वन बैलेंस शीट एक्चुअली. क्यों? बिकॉज व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन जो मैं आपको अभी के अभी दिखा देता हूँ, जस्ट बिहाइंड मी is a balance sheet for the year ending. Okay, normally we have it as on. The meaning is almost the same, but this is trying to tell you कि ये है March 31st 2015 last year. This is the opening balance sheet, and the good thing what, liability का total is 50,000 and even asset का total is 50,000, meaning ये balance sheet तो ready है. वेरी ट्रू. इसके लिए ये बैलेंस शीट हमको किस में मिलता है, वेल तोहफे के रूप में मिलता है कि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का ज़रूरत नहीं है. वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ आइटम्स इन दी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये जो मेरे पीछे है, गोइंग टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो स्टेप 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हमारा काम जल्दी हो जाएगा. ओके, सो दो चीज़ें, एक सॉल्यूशन बड़ा क्यूट है, दूसरा क्वेश्चन में हमको एक तोहफा मिला है ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट. पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. ओपनिंग कैश बैलेंस, यू डोंट हैव टू राइट इन द ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि वो है कैश इन हैंड. मेरे पीछे 12,000, सब्सक्रिप्शन टोटल इज 24,000, इन दैट 2,000 लास्ट ईयर का है. यू डोंट हैव टू राइट, वो सब दिया है. देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीनिंग रिसीवेबल, पीछे अगर आप देखो तो वो 3,000 है. व्हाट डज दैट मीन? लास्ट ईयर में पेंडिंग सब्सक्रिप्शन था 3,000, यू हैव रिसीव्ड 2,000. अगेन यू डोंट हैव टू वरी. उसके लिए जैसे मेरे बाल झड़ गए हैं ना, ओके, आपका हेयर लॉस नहीं होना चाहिए. क्या सर ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखो? ओपनिंग बैलेंस शीट पूरा रेडीमेड आपको दिया है. देन एंट्रेंस फीस वो इनकम है, लॉकर रेंट वो इनकम है. टुडे वी हैव अ RTNL फॉर्मूला. ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम नहीं है कंपल्सरीली क्योंकि वो एक ही बार मिलता है. इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, एडेड टू कैपिटल फंड. गवर्नमेंट ग्रांट इनकम होता है. ओके, जो गवर्नमेंट अपने तरफ से हेल्प करने की कोशिश करती है. ओके, क्योंकि यस, बिकॉज उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द नॉर्मल पब्लिक. तो वो अपने तरफ से जब इंस्टीट्यूशंस को, जो इंस्टीट्यूशंस अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, द हेल्प दैट दे गिव इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट. तो इट्स एन इनकम. देन फर्नीचर एसेट है, आई विल राइट इट ऑन द एसेट साइड. टेलीफोन एक्सपेंसेस, दिस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में लिख दूंगा मैं. नेक्स्ट सैलरी, आई हैव रिटन अ PTNL. सैलरी का टोटल नहीं दिया, आई होप आपको दिखता है मेरे ऊपर. वेल आपको एक्चुअली नहीं दिखता कि टोटल नहीं दिया. द लास्ट ईयर इज 1,000 एंड द करंट ईयर इज 4,000. आपने कभी ध्यान दिया होगा, वेन एवर आई राइट द फॉर्मूला salary PTNL, subscription RTNL, in that line I always write the total. कि फर्स्ट लाइन में टोटल आना चाहिए which is the wrong amount, and then PTNL
एंड RTNL उस रॉन्ग अमाउंट में सुधार लेकर आता है, रेक्टिफिकेशन, करेक्शन लेकर आता है. सो फर्स्ट लाइन always write the total. So the total is 1 plus 4, 5,000. In 5,000, 1,000 is last year's payment of salary. न्यूज़पेपर खर्चा है, सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा है, डिफेंस बॉन्ड खर्चा नहीं है. इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट. ओके, व्हाट इज इट? एन एसेट. वेरी सिंपल. द वर्ड डिफेंस बॉन्ड मीन्स व्हाट? व्हेन नॉर्मल पब्लिक, यू मी, हमको हमारे पैसे जो मेहनत के पैसे हैं, ओके, हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. ओके, एंड एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट द डिफेंस ऑफ इंडिया, जो आर्मी में, जो नेवी में काम करते, मुझे उनकी मदद करनी है, हाउ कैन आई डू दैट? ओके, वेल, आप गवर्नमेंट से ये खरीद सकते हो, डिफेंस बॉन्ड, क्योंकि ये इसमें जो पैसा आता है ना, गवर्नमेंट वो डिफेंस पर्पसेस, उसके अपग्रेडेशन के लिए यूज करती है. ओके, इन अ वे तो आपका दूर दूर से ही बट कुछ मदद वहाँ पे हो जाए. इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. आप इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट उसको आगे जाकर यूज करती है फॉर डिफेंस पर्पसेस. और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, जैसे वो ड्यूरेशन, एज एंड व्हेन दैट ड्यूरेशन कम्स टू एन एंड, द मनी कम्स बैक टू यू. ओके, सो फॉर एवरीवन इट वर्क्स आउट. आपके लिए काम आ गया, गवर्नमेंट के लिए काम आ गया, एंड डिफेंस पर्सनल्स के लिए काम आ गया. ओके, एसेट, लैंड also asset, closing cash balance also asset. Then this balance sheet, which is opening balance sheet, liability side. Normally you get capital fund. आज capital fund नीचे, that doesn't matter, liability में है, that is what is important. Advance locker rent, meaning some members, जो लोग हमारा लॉकर यूज करते हैं, ओके, उन्होंने वो लॉकर यूज करने के लिए हमको एडवांस दिया है. ओके, विच इज अ लाइबिलिटी. ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ तो लाइबिलिटी सर, लाइबिलिटी साइड पे तो है, बराबर है. आपको क्या समझना है कि ये जो एडवांस है, प्री रिसीव्ड, पहले से रिसीव्ड, बराबर, ये कब का एडवांस है? दिस इज लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट. अगर इसमें एडवांस है, इट हैज टू बी फॉर द अपकमिंग ईयर. एंड व्हाट इज द अपकमिंग ईयर? करंट ईयर. सो ये लॉकर रेंट करंट ईयर का है. कितना? 200. कीप इन माइंड, दिस ईयर्स रिसीव्ड लास्ट ईयर. ये वर्डिंग्स जो है ना, RTNL PTNL के टी में आते हैं. देन वेरी सेम फीलिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मेंबरशिप फीस. सम मेंबर्स ने लास्ट ईयर में अपकमिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया. अपकमिंग ईयर इज द करंट ईयर. This year's received last year. For the last around 2 or 3 questions, ये जो T का मुद्दा है ना, T का, in PTNL, RTNL, I have continuously done it. Okay, I have tried my best that yes, the questions are from the textbook, but the order makes sense. Okay, whether it is the illustration question or whether it is the practice problem, there is a sequence in the difficulty level and the repetition. कि अगर मैंने question lecture 12 लिया है, it is connected to 11, 13 is connected to 14, 14 was connected to 13, something like that. Okay, हाँ. Also going ahead, outstanding salary, last year का आपने 2000 rupees salary का पे नहीं किया, तो it is assumed कि in the next year आप उसको पे करके पुराना हिसाब क्लियर कर दोगे. लोन 10,000, उसका कुछ नहीं हुआ है, वो कुंभकर्ण की तरह वैसे ही पड़ा हुआ है. ओके, तो लोन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड विल रिमेन द सेम, बिकॉज इन द होल क्वेश्चन लोन के बारे में कुछ कहा नहीं गया है. देन कैपिटल फंड विच वी विल ट्रांसफर. मेरे पीछे कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीवेबल लास्ट ईयर का है, तो वो रिसीव हो जाएगा और वो नॉर्मली क्लियर हो जाना चाहिए. एंड बिल्डिंग 35,000. ओके, सो मेरे नॉर्मल टाइम से तो हाफ टाइम में मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर लिया है. स्टेप 1, व्हाट?
we don't prepare opening balance sheet. We will from the opening transfer to the closing. तो with me, अगर आपका फॉर्मेट रेडी है जो होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैंने पहले 10-15 मिनट एक्सप्लेनेशन में लिए है, कीप द फॉर्मेट रेडी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू RTNL कहाँ पे चाहिए, कितने चाहिए, PTNL कहाँ पे चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट चाहिए, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग वट एवर इज बीइंग डन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ये वाले यूट्यूब चैनल पे, तो डेफिनेटली प्लीज रिमेंबर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ओके, खुशियाँ बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है. If this channel somehow through its explanation is bringing a little smile on your face, okay, and a little bit simpler understanding, please do your best and please do your bit, okay, to share the information of the content on this channel with your friends also. It would be highly appreciated. So let's get started. Here goes. We are preparing the closing बैलेंस शीट, क्योंकि तो हमको तो तोहफे के रूप में ओपनिंग मिल चुका है. सो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहला क्या था, एडवांस लॉकर रेंट रिसीव्ड, बट वो था रिसीव्ड इन द लास्ट ईयर फॉर द अपकमिंग ईयर, मतलब फॉर द करंट ईयर, विच इज 15-16 200. द नेक्स्ट वॉज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. दीज आर आइटम्स विच आर टी आइटम्स एंड दे गेट एडजस्टेड, जैसे उसका टाइम खत्म हो जाता है वो एडजस्ट हो जाते हैं. 1000. देन सैलरी आपने पे नहीं किया है, आपको पे करना पड़ेगा, विच यू विल. ओके, अब थोड़े टाइम में हम लोग फॉर्मूला करेंगे सैलरी का, ये हम लोग 2000 पे कर देंगे. लोन था वो तो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, स्टार्ट में भी 10,000 है, एंड में भी 10,000. एंड कैपिटल फंड, राइट अबाउट. इफ समबडी वुड से सो व्हाट इफ आई राइट कैपिटल फंड इन द बिटवीन और इन द एंड, चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अगर आपके जो प्रोफेसर है जो करेक्ट करते हैं, ओके, मे बी उनको प्रॉब्लम हो सकता है. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, ओके, कि क्यों हमको कुछ अलग करना है. ओके, नॉर्मली विच इज सेफ टू गिव मी गुड मार्क्स, आप वो कर लो. तो इट इज आइडियली बेटर टू राइट इट अबाउट कैश. वर्डिंग कॉपी करना, बट वी हैव टू राइट क्लोजिंग, तो डोंट कॉपी द अमाउंट. वी हैड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लास्ट ईयर वाला, ओके, जो करंट ईयर में रिसीव होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली रिसीव्ड होके क्लियर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन आई थिंक वाज बिल्डिंग, कुछ नहीं हुआ इसको, वो डिप्रिशिएट भी नहीं हो रहा है. देयर इज नो परचेज, देयर इज नो सेल, सो अबाउ 35,000. ओके, सो नाउ देयर आर नो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट्स इन दिस. ओके, कुछ एडजस्टमेंट्स है जो लास्ट ईयर से कनेक्टेड है, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. दिस क्वेश्चन also is a little bit unique. The last lecture's question was very, very unique. Please go, if you are at the beginning of this lecture, the I button was provided. If not at the end of this lecture also, always there is a link provided for the previous lecture. So, क्या करना है, क्वेश्चन देखना है. क्यों हमको अभी we have to prepare income and expenditure account. First, subscription is 24,000, in which last year का कितना है, 2000 received. So when you write in subscription ऊपर 24,000, इसके अंदर लास्ट ईयर का 2000 है. उसका सेकेंड इफेक्ट, व्हाट इज दैट रिटन अबाउ. ओके, आप ऐसा बोल रहे हो क्योंकि आपका ऐसा कहना नहीं, क्वेश्चन ऐसा बता रहा है कि 24,000 में 2000 तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. सेकेंड इफेक्ट उसका एसेट साइड पे आएगा, बिकॉज एसेट साइड पे ऑलरेडी यू हैव रिटन, तो वो जो रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन है ऊपर, वो तो रिसीव्ड हो गया है, तो उसको माइनस करके क्लियर कर लो. 2000, तो यू स्टिल हैव 1000. पूरा क्लियर नहीं हो गया, चलेगा, जितना क्लियर हो गया उतना माइनस आपने कर लिया. ओके, देन इन द क्वेश्चन देयर इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 22,000. उसका नथिंग, यू डोंट हैव टू बी डूइंग एनीथिंग, उसको यू डोंट हैव टू ऐड and you don't have to subtract. Reason being, it is correct. Current year's subscription, current year में ही आपको मिलने वाला है. You will receive it in the current year. Okay. If you have already received in the last year, that's a different thing. That is this one, 1,000. In fact, this 1,000 is
this year's subscription received last year, and when you look at that you have to go to the formula of subscription and in the T item T आपको वो लिखना पड़ेगा कि यही साल का करंट ईयर का. ओके, व्हेन यू राइट दैट द आंसर ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटसाइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में दो ही एडजस्टमेंट थे, इज 23,000, बट 1,000 का सेकेंड इफेक्ट is on the liability side, and that time उस जमाने में, इतना पुराना भी जमाना नहीं है, लास्ट ईयर, इट वाज रिसीव्ड इन एडवांस. अभी तो एडवांस का ड्यूरेशन खत्म हो गया बिकॉज करंट ईयर खत्म हो गया, तो वी कॉल इट एडजस्टेड. उसको एडजस्ट करके हम लोग माइनस कर देते हैं 1,000. सो क्लियर, इट इज नॉट एक्चुअली टेक्निकली अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके, मैनी मे बी टीचर्स एंड इवन टेक्स्ट बुक्स के अंदर वो होता ही नहीं, दिखाती ही नहीं. आई एम जस्ट राइटिंग इट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि एक चीज जो ओपनिंग बैलेंस शीट में थी वो कैसे गायब हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट तक आते आते. सो फॉर आई होप अ लिटिल बिट बेटर एक्सप्लेनेशन, हियर गोस. देन कम्स, सो सब्सक्रिप्शन इज डन, एंट्रेंस फीस 2,800, इनकम है, लेट्स राइट. मेरे पास आई हैड वन लाइन इन बिटवीन, तो वो लिख दिया वहां पे. आपकी मर्जी आपको जहाँ पे भी लिखनी है, बट उसको बस इनकम साइड पे लिखना. नेक्स्ट, लॉकर रेंट 1,000. व्हेन यू राइट लॉकर रेंट विच इज अबाउट मी, यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर क्या कि लाइबिलिटी साइड पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस लॉकर रेंट. लास्ट ईयर में आपको एडवांस मिला था अपकमिंग ईयर का. अपकमिंग ईयर इज द करंट ईयर. दिस ईयर्स रिसीव्ड लास्ट ईयर, यही साल का तो लॉकर रेंट है 200 रुपीज. सो व्हेन यू गो टू द फॉर्मूला विच इज दिस वन, जो टी आइटम है, इन दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट 200. 1,000 तो आपको टाइम पे मिला और 200 आपको पहले ही मिला, बट करंट ईयर इफ यू थिंक 1,000 is locker rent of the current year, 200 also is locker rent for the current year. So the correct amount either 1,200, but the second effect of 200, whatever you write in RTNL, PTNL has a second effect, and the formula ALLA or LAAL, it helps you with the second effect. So the second effect of this is on the liability side and it is adjusted 200, तो वो भी खत्म हो गया. सो लॉकर रेंट इज ऑल्सो ओवर. लाइफ मेंबरशिप फीस is compulsorily capitalized, meaning added to capital fund. So at the very beginning of the board, 1,200. Next, government grant, एक तरह से हेल्प होती है, 11,000. अगर गवर्नमेंट के पास पैसे रहे जो होते हैं तो वो हेल्प रेगुलरली आती है 11,000, क्योंकि मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस दे डोंट मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड दे डोंट सेल अ प्रोडक्ट, तो उनका कोई सेलिंग प्राइस होता नहीं है. दे डिपेंड अपॉन हेल्प दैट इज गिवन बाय अदर्स. ओके, जो उसमें अदर्स में गवर्नमेंट भी आता है. देन कम्स पेमेंट फर्नीचर, कितना 4,000. खर्चा नहीं है, बिकॉज इफ आई आस्क यू, आपके घर पे क्या डाइनिंग टेबल आप हर दिन खरीदते हो? क्या आप कबर्ड जो एक पार्ट ऑफ फर्नीचर है, ओके, क्या सोफा सेट आप हर दिन खरीदते हो? नो. आप लोग बोले सर एक ही खरीदा सर, अभी मैं हम इतनी बार बैठ चुके हैं कि वहाँ पे सर डिज़ाइन आ चुका है. ओके, हम सब मेंबर्स को पता है कि भाई कौन सी जगह किसकी है, तो इतने टाइम से हमारे पास है. सो इट इज़ एसेट 4,000. नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस 800, खर्चा है, तो आई रोट इट देयर. टेलीफोन एक्सपेंसेस 800, आप भी लिख लो. सैलरी 2 years, टोटल लिखना फर्स्ट लाइन में, एंड द टोटल ऑफ सैलरी विच यू राइट इन द फर्स्ट लाइन इज 5,000 टोटल. इन 5,000, 1,000 is of last year, if I am not wrong. So outer column में 4,000 is the correct salary of the current year, but the second effect of 1,000 is liability side, क्योंकि last year का salary आपने पे नहीं किया है.
तो 2000 पेंडिंग था, आपने 1000 पे की, 1000 अभी थोड़ा पेंडिंग है, तो थोड़े थोड़े करके आप वो भी क्लियर करा दोगे, जैसे ही पैसे आ जाएंगे क्लियर कर लोगे। नॉर्मली पुराना हिसाब नॉर्मली पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। whenever I say this पुराना हिसाब, एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कॉलेज लेवल पे ओके, आप और आप नेक्स्ट ईयर जाते हो, बट पिछले साल के एक दो सब्जेक्ट्स में आपको रेड मार्किंग, दैट मीन्स यू हैव नॉट पास्ड आउट ओके, बट द कोर्स अलाउज फॉर यू टू गो टू द नेक्स्ट ईयर, बट इट मेक्स इट क्लियर कि बाबा जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो पिछला जो है, जो क्लियर नहीं हो पाया है उसको क्लियर करो, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीट कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा पास करने का ओके। सो दैट कोर्स ऑल्सो रिमेंबर्स, पुराना हिसाब आपका जो था ना, पुराने सब्जेक्ट्स वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आप सन न्यूज़पेपर ओके, कितना है 700, सो लेट्स राइट 700। नेक्स्ट sundry expense 1000, let's write 1000। next defense bond, it is a kind of investment, it is a kind of investment जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचती है 18,000, आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो। अगर उसी को रेलवे बॉन्ड कहे तो वो रेलवे के बेनिफिट के लिए, बेटरमेंट के लिए यूज किया जाता है। लैंड 20,000, सो अबाउ 20,000। देन कम्स क्लोजिंग कैश बैलेंस, वेरी काइंड ऑफ देम क्लियरली बता दिया ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है एकदम ऊपर। एंड देन सरप्राइज there is no other item to be written। adjustments already थे, थोड़े अलग स्टाइल में थे कि लॉकर रेंट में there was this year's received last year, subscription में there was this year's received last year, salary में, so we have already taken care of all the adjustments okay। जितने adjustments थे उसके effects हो चुके हैं, अभी हमको सिर्फ टोटल करना है। इसके लिए मैंने कहा था at the very beginning क्या, this is a cute question, I hope you remember the cuteness, ये applicable था हमारे आज के क्वेश्चन के लिए। so क्या करना है, कुछ नहीं, सब हो गया हमारा, हमने सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल, बिल्डिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं है, लोन में कुंभकर्ण के सोया हुआ है ओके, नथिंग इज डन। टोटलिंग कर लेते हैं, नॉट एवरी क्वेश्चन विल टेक 1 hour's लेक्चर ओके। सो ये मेरे इनकम साइड पे 38,000 और expense side which is less, the difference of surplus is 31,500। maximum problems I think maybe 2 questions जो मैंने solve किए जो इसमें deficit आया था, otherwise it has always been surplus which is from here added to the capital fund, from here added to the capital fund which I am doing right above, and the total of capital fund never remains the same क्योंकि उसके अंदर पैसे आते हैं कभी कभार पैसे जाते हैं। 69,500 and the total 80,500, 80,500। this has been the solution for the day। I don't want to be taking up any more of your time because time is extremely very precious if you're using it, if you're spending it online, वो फिजूल ज़ाया नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। always remember the PDF of the question and the answer is available in the description below as well as on the Telegram channel. At the end of the entire chapter it will be shared. If you have understood the explanation, a like to this particular lecture definitely कर देना। Very importantly, for which we require your support, is you spread the good news about this channel and the coaching and the tutoring on this channel to your friends। share the links of the videos okay, उसमें कोई हमने क्या कहा है, बाधा नहीं रखी है okay। you can always go on sharing it with your friends
and if you have any comments concerning this particular lecture, you can always put it up in the comment category. We always do our best to respond to it. अगर उसी दिन पे नहीं होगा, on the upcoming day as and when we are notified about a comment. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूँगा. क्यों? वेल, टाइम पास के लिए नहीं, ताकि मैं आपको सिखा सकूँ, आप कुछ सीख सको. ओके, so that is it for me. This is Steven. So this is a goodbye from me. Please take care of yourself. Take care of your seniors and juniors, of every one of your lovely family members. Okay, I hope you have a wonderful day ahead. Okay, ऊपर वाला की सुरक्षा, okay, प्रोटेक्शन आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे. ओके, अभी के लिए इतना ही. गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू.